Welcome back. We are doing chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. In our previous lecture, we have read that Nelson Mandela thanks thousands of the people who have sacrificed their life, but now they are no more. But they sacrificed their lives for the freedom of these people and for the abolishment of the that system that was apartheid system. So he was pained that now he was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices have brought, which the achievement they are not able to see. So we have to start from this. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years. The policy of apartheid created a deep and lasting wound. Now this policy, it has created a deep and lasting wound in the country, because everybody is very frustrated. So this had brought a very deep cut, like a wound. It harm our body, it pains our body. Similarly, this apartheid system had created a deep cut, a deep wound in the country and the people, especially the black people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. And Nelson Mandela says that this wound is so deep that it will take many years to heal up, to recover. It will take, if not generations, it's called if not generation, recovering from the profound hurt. So it will take at least. Profound hurt means a deep and strong cut, strongly hurt. The people are hurt. But the decades of the oppression and the brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Letelius, the Yusuf Dadus, the Barham Fishers, the Robert Sebuquez of our time. The narrator has used word the before the names. Just notice why he has used the words the. We all know that with the proper noun and to highlight some specify something we use the. हम कहाँ पर यूज़ करते हैं द आर्टिकल को? हम किसी चीज़ को जब हम हाईलाइट करते हैं वहाँ पर द वर्ड लगता है. किसी नेम के आगे कभी भी द नहीं लगता. कहाँ पर लगता है द? जब हम किसी की ग्रेटनेस को शो करते हैं. एंड सिमिलरली नरेटर ने, ऑथर ने, नेल्सन मंडेला ने इन सभी लोगों के नेम के आगे द यूज़ किया है, उनको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये इन लोगों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं गया है. उसने इन्हें स्पेसिफाई किया द यूज़ करके उनके नेम्स के आगे. सी ऑल दीज नेम, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट किया, अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया फॉर द एबॉलिशमेंट ऑफ द सिस्टम, apartheid system. Okay, so men of such extraordinary, you can see the picture of all people, and these are the prominent name in the struggle against apartheid. Okay, these all people, they struggled against this apartheid system. Okay, so courage, wisdom and generosity that they're like many never be known again. Perhaps it requires some depths of oppression to create such heights of character. So they all were men of courage, wisdom and generosity. Okay, they all have courage. किस चीज़ की courage थी उनमें? कि वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ सकें. इट वॉज़ नॉट ईजी. इतने टाइम से जो रूल कर रहे थे लोग, वाइट पीपल, उनके अगेंस्ट इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क. बट विद द करेज एंड विजडम एंड जनरोसिटी दे पीपल हैव यूज देयर has sacrificed their life, and it can never be known again. Perhaps it requires such depth. शायद it requires depth of operation to, इस चीज़ के लिए अब उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा. टू क्रिएट सच हाइट्स, बहुत ज़्यादा समय लगेगा इतनी ऊंचाइयों पर जाने के लिए. ऑफ करेक्टर, हर किसी इंसान के लिए इट्स नॉट ईजी कि उस ऊंचाई पर वो पहुंच सके. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. एंड माई कंट्री इज़ वेरी मच रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स. ये कंट्री साउथ अफ्रीका, यहाँ पर सब कुछ है. मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी धरती में सब कुछ है. बट I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. And लेकिन मैं इस बात पे हमेशा यकीन करता हूँ कि इस
धरती की सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? ग्रेटेस्ट वेल्थ, इस धरती की सबसे बड़ी संपदा क्या है? यहाँ के लोग फाइनर, जो इतने फाइन हैं, इतने अच्छे उत्कृष्ट हैं, और ट्रू हैं। ट्रू मीन्स सच्चे हैं, उनके अंदर ट्रूथफुलनेस है अपनी कंट्री के लिए। ओके, एंड प्योरेस्ट, दे आर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, लाइक अ डायमंड, दे पीपल आर pures like the diamond. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. It is from these comrades. और ये सब courage ये कहाँ से मिली? These comrades in the struggle, जिन्होंने अपनी लाइफ को, ये comrades होते हैं जो जवान जिन्होंने अपने लाइफ इसके लिए स्ट्रगल कर दिया। एंड आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और मैंने इन लोगों से ही साहस का मतलब, करेज का मतलब इन लोगों से ही सीखा है कि साहस किसे कहते हैं। आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. एंड मैंने इन लोगों को खड़े होते हुए देखा है बिना किसी डर के। दे हैव सी आई हैव सीन them stand up to attacks and tortures, कितना इन्होंने टॉर्चर प्रताड़ना से ये विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन ये अंदर से कभी भी टूटे नहीं इस चीज़ से। शोइंग अ स्ट्रेंथ, बल्कि इन्होंने और ज़्यादा हिम्मत दिखाई। रेजिलियंस होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, किसी भी चीज़ को बहुत हिम्मत के साथ फेस करना और उस चीज़ से बड़ी जल्दी रिकवर भी हो जाना, उसे कोप अप कर लेना, उससे ऊपर उठ जाना। सो सिमिलरली दे पीपल now they people have beared this torture and they have cope up it fast. Okay, they have recovered from its effect very fast. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. And then Nelson Mandela again says that कि एक ब्रेव इंसान वो नहीं है जो कभी डरता नहीं है। जिस इंसान को डर नहीं है वो मेरी नज़रों में वो साहसी नहीं है। साहसी कौन है? जो फियर को कॉन्कर कर लेता है, जो डर है उसको वो जीत लेता है, डर के ऊपर जीत पा लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। सो ही सेज दैट कि कोई भी जो है जन्म से या रंग से या उसकी जन्मभूमि से, उसके धर्म के आधार पर दूसरे से कभी भी नफरत नहीं करता है। They can be taught to love, for love comes, people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. So he says that even अगर उन्हें कोई नफ़रत करना सिखाता भी है, लोग नफ़रत करना सीखते हैं, और यदि वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। सो नफ़रत करना कौन सिखाता है? हम कोई भी चीज़ कहाँ से सीखते हैं? जो चीज़ें हम सुनते हैं, जो देखते हैं। मीन्स अ किड इन अ फैमिली, कहाँ से सीखता है बच्चा? जब वो अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को देखता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, इन लोगों से नफ़रत करनी है। सो ये इतने टाइम से जो रूल चला आ रहा था कि वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी एंड ब्लैक पीपल के बच्चे जो है बड़े हैं उन सब के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ही सेज़ दैट कि वही चीज़ अगर नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और मैं मानता हूँ कि प्यार करना ज़्यादा प्राकृतिक है रादर देन नफ़रत करना। Than its opposite. Opposite means to hate someone. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Now he again says that जब जेल के अंदर थे वो तो बहुत ज़्यादा इट वॉज़ द टफेस्ट टाइम व्हेन ही वाज इन द ग्रिमेस्ट टाइम। ग्रिमेस्ट टाइम मीन्स द टफेस्ट टाइम, जब वो जेल में थे। सो दिस वॉज टू दैट टाइम ही सेज दैट दिस वॉज द ग्रिमेस्ट टाइम। ओके, सो ही सेज दैट कि एट दैट टाइम मुझे और मेरे साथियों को जो था, जो इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, इतनी ज़्यादा, दे वर पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है। बट स्टिल ही सेज दैट कि एक गार्ड जो था उसके अंदर मैंने ह्यूमैनिटी देखी। एंड शायद एक सेकंड के लिए ही सही, पर मुझे ये तसल्ली लगी कि मुझे
ये चीज़ करने के लिए इट कीप मी गोइंग, रीअश्योर कर दिया कि हाँ कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी, अगर एक इंसान थोड़े टाइम के लिए बदल सकता है तो शायद मैं सभी लोगों को बदल सकता हूँ. मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. एंड अगेन ही सेज दैट द मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम. एक ऐसी ज्योति होती है, इंसान एक ऐसी ज्योति है जिसे हम कभी भी हाइड नहीं कर सकते हैं. इट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, और एक्सटिंग्विश होता है किसी चीज़ को बुझाना, तो कहते हैं कि कभी हम इसको बुझा भी नहीं सकते हैं. सो अगेन हियर द क्वेश्चन, जनरल्स ने क्या किया था, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, उन्होंने उनको सल्यूट किया था. रादर बिफोर उन्होंने क्या किया था, जबकि वही लोग थे जिन्होंने उन्हें जेल में डाला था. दे पीपल हैव forced him to they people put him into the jail, but still this time they people are saluting him. Why were the two national anthems sung? Because of there were two people. इससे पहले इतनी ज़्यादा discrimination था that black people sing another national anthem and the white people they sing another national anthem. This was the first time they both were singing their national anthem at the same time. How does the Mandela describe the system of government in his country? So you have to opt to the correct option. We have read in the chapter. What does the courage mean to Mandela? The courage means to Mandela, अभी हमने किया है जस्ट, कि courage क्या है. Courage is not to get afraid. This is to conquer the fear. साहस क्या है? साहस ये नहीं है कि हम किसी से डरते नहीं तो हम बहुत साहसी है. नो, साहसी कौन है? जो अपने फियर को कॉन्कर कर ले, अपने फियर को ओवरकम कर ले. दैट वन इज़ कॉल्ड करेजियस पर्सन, नॉट द वन हु डजंट get afraid of anyone. Okay, which does he think is natural to love or to hate? So what is natural? We have done just now. Natural is to love someone. Okay, ये ज़्यादा natural है किसी को प्यार करना. Okay, let's continue. In life, every man has its twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife, to children. And he has an obligation to his people, his country, his community, his country. सो ही सेज दैट एवरी मैन, हर इंसान की ऑब्लिगेशंस होती हैं, मीन्स जिम्मेदारियाँ होती हैं. ऑब्लिगेशंस मीन्स जिम्मेदारियाँ, ओके, लाइबिलिटीज़. तो ही सेज दैट कि हर इंसान के पास ट्विन, एक घर की और एक बाहर की. घर में कौन आ जाते हैं? फैमिली, वाइफ, बच्चे, ये सब आ जाते हैं. ठीक है. एंड दूसरी जिम्मेदारी होती है ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, कम्युनिटी, अपने आसपास के लोगों के, जहाँ वो काम कर रहा है उसके लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास के जो रिश्तेदार हैं उन सब के लिए, एंड अपनी कंट्री के लिए. ओके, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़. सो इंक्लिनेशंस आर नेचुरल टेंडेंसीज और बिहेवियर. सो ही सेज दैट ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल. अब हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को अपने अकॉर्डिंग, अपने इंक्लिनेशंस होते हैं, नेचुरल टेंडेंसीज और बिहेवियर से उनको फुलफिल करे. ठीक है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligation. अब वो कहते हैं कि लेकिन मेरे जैसे लोग, जो इतने सारे लोग हैं इस कंट्री में, उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है. मेरे जैसे लोग मीन्स, अब वो अपने जैसे की नहीं कह रहा है, जो मेरी जाति के हैं, मेरे रंग के हैं, वो इस जिम्मेदारी को नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि एक मैन जिसका मेरे जैसा कलर है, मीन्स ब्लैक पीपल हैं, दे आर अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग. अगर वो इंसान लोगों की तरह, मानव की तरह जीने की कोशिश करते तो उन्हें क्या कर दिया जाता था? उन्हें पनिश किया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था कि कोई रेवोल्यूशन ना आ जाए. So in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family, his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not, in the beginning, choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father, and a husband. So he says that कि अगर कोई कोशिश करता तो उसको अलग थलग कर देते थे,
और अपने लोगों के लिए अगर अपने कर्तव्य को पूरा करने की, वो जो ड्यूटीज़ था उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करता तो उसके परिवार के लोगों से उसको अलग कर दिया जाता था, उसको अलग जीने के लिए उसको फोर्स कर दिया जाता था और एक सीक्रेट प्लेस में उसको रख दिया जाता था, जहाँ पे उसका एक अस्तित्व, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो सब क्या हो जाती है, बिल्कुल फेडेड हो जाती है, बिल्कुल धुंधली हो जाती है। अब वो कहते हैं कि लेकिन शुरू में तो मैंने अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी थी लोगों को, ठीक है, परंतु लेकिन जब अपने ही लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने देखा कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में सारी जिम्मेदारी निभाने से रोका जा रहा है कि मुझे करने ही नहीं जा रहा, सो ही सेज दैट इट हर्ट मी, ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। अब मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ था कि मैं जन्म से नहीं, आज़ाद होने की चाह से नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast millies under the stars and ride the broad backs of the slow moving bulls. As long as I obeyed my father, abided the customs of my tribe, I was troubled by the laws of man or God. So he says that कि मेरे अंदर ये सब जो थी, आज़ादी की चाह जो थी, वो जन्म से नहीं थी, आज़ाद होने की चाह के लिए नहीं जन्मा था, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। ओके, सो ही सेज दैट कि मेरी जो माँ थी वो एक हट में रहती थी, उसके पास दौड़ने के लिए आज़ाद थी, मेरे गांव से जो भी सड़क नदी गुजरती है उसमें मैं तैरने के लिए आज़ाद हूँ, जो तारे हैं उनके नीचे मैं भोजन पकाने के लिए आज़ाद हूँ, धीमे चलने वाले जो बैल हैं उनकी चौड़ी पीठ पे सवारी करने के लिए आज़ाद हूँ। तो जब तक मैंने अपने पिता की, जो अपने फादर की, अपने फॉलो नहीं की, उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया और अपने कबीले के रिवाज़ों को माना, उनका अपने फादर को फॉलो किया और अपने कबीले के रिवाज को माना, तो भगवान और आदमी के नियमों से परेशान नहीं था मैं। तब तक मैं बहुत मज़े में था, जब तक अपने घर परिवार में था। लेकिन अब वो कहते हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करने लगता है, तो उसे पता लगता है कि मुझे इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, माई बॉयहुड फ्रीडम इज़ इल्यूशन, ये तो एक सिर्फ भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. अब अपनी फ्रीडम के लिए जैसे जैसे बड़े होते हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ करने की आज़ादी नहीं, कहीं बैठ नहीं सकते अपनी सोसाइटी से बाहर, तो जो यंगस्टर होता है उसे तो आज़ादी चाहिए, और वो सब आज़ादी तो उन लोगों की पहले ही छीन ली गई है। तो ही डिस्कवर्ड इट एंड ही फेल्ट वेरी बैड, इट बिगैन टू एंड दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। अब मुझे इस चीज़ की हंगर थी, मुझे इस चीज़ की चाहत थी, इस चीज़ की भूख थी कि मुझे भी बाहर जाके सोसाइटी के साथ रहना है, उन लोगों की तरह ही रहना है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So here he says that कि अब मैं जब कॉलेज में गया, जब बड़ा हुआ, तो पहले तो एज अ स्टूडेंट सिर्फ मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, ओके, द ट्रांजिटरी फ्रीडम। लेकिन अब ट्रांजिटरी क्या होता है, द ट्रांजिटरी इज़ नॉट परमानेंट। लेकिन ट्रांजिटरी फ्रीडम ही थी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ये तो थोड़ी देर के लिए थी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। अब मुझे क्या, जो मैं पढ़ना चाहूँ, जहाँ मैं जाना चाहूँ, ये सब फ्रीडम चाहिए थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉनेसबर्ग, अब जब वो जॉनेसबर्ग में थे, आई यर्न, तो मैं किस चीज़ के लिए, यर्निंग होता है किसी चीज़ के लिए तरसना, सो आई यर्नड फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। अब मेरी जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स थी, जो एक आधारभूत होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, तो इन सब के लिए माई पोटेंशियल ऑफ earning my keep of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। और ये फ्रीडम जो थी, ये एक लॉफुल लाइफ, अब पूरे लॉफुल लाइफ जीने के लिए कभी भी मुझे ये अब बाधित ना करे। मैं ऐसी आज़ादी चाहता हूँ जिसे कोई लोग भी मुझे इसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, मतलब उसमें कोई भी अड़चन ना पैदा करें, ओके। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but
freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. But अब he says that कि धीरे धीरे जब मैंने देखा कि not only I was free, कि ना केवल मैं, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे, कोई भी नहीं आज़ाद थे. सो आई सॉ दैट इट वॉज नॉट माई फ्रीडम. अब वो कहते कि सिर्फ मेरी फ्रीडम कर्टेल नहीं हुई. कर्टेल होता है उस पर किसी चीज़ पे कर्टेल हो जाना, मतलब उस चीज़ पे बंधन लग जाना, प्रतिबंध लग जाना जिसे हम कहते हैं. सो अब ये फ्रीडम भी थी, कर्टेल हो गई थी. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी थे उन सब की फ्रीडम कर्टेल हो गई. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. नाउ ही सेज दैट अब ये वो समय था जब मैंने नेशनल कांग्रेस एंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की. एंड व्हेन द हंगर ऑफ माय फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. अब जब उन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उनकी जो फ्रीडम थी अब वो क्या बन गई, फ्रीडम फॉर माई पीपल. अब सिर्फ मेरे लिए ही नहीं रहेगी, मुझे अपनी जाति के सब लोगों के लिए अब फ्रीडम पानी थी. और ये मेरी ग्रेटर हंगर बन गई, मतलब मेरी जो डिज़ायर थी वो बढ़ गई. इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. एंड दिस वॉज ऑल विच ही वॉन्टेड, द लाइफ विद डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. और इसने क्या किया, मेरे लोगों को इज्जत से जीने के लिए और मेरी लाइफ को क्या कर दिया, इसको the self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one and drove a law-abiding attorney, that is of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity. So it gave the freedom to the people to live their life with dignity and सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. और वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसने मेरी लाइफ को क्या कर दिया, एनिमेटेड कर दिया, मतलब चेंज कर दिया. एनिमेटेड होता है किसी चीज़ में बदल देना, है ना, जैसे एनिमेशंस होती है कैरेक्टर्स की, एक कैरेक्टर को दूसरे रूप में हम चेंज कर देते हैं. कैरिकेचर्स होते हैं, उनको हम एनिमेटेड कर देते हैं. सो सेम वे ही सेज दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, जो एक डरा डरा सहमा हुआ रहता था, अब मैं बहुत बोल्ड बन गया, साहसी बन गया. एंड दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम. Now it has drawn a law-abiding attorney. Now it make me to become a criminal that turned a family-loving husband into a man without a home. अब जब इंसान बाहर की सोचने लगता है, बाहर सोसाइटी में जाता है, तो वो अपना घर बार सब भूल के, क्योंकि आपको बोल्ड बनने के लिए ये सब चीज़ों को, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उन सबको छोड़ देना पड़ता है. द सेम वे ही सेज दैट कि ही हैज़ नाउ बिकम अ क्रिमिनल. क्रिमिनल इन व्हाट सेंस? क्रिमिनल इन सेंस दैट अब वो देश अपने जो लॉज है उनको तोड़ने चला है. सो दैट टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड. अब ये जो फैमिली लविंग हस्बैंड था वो एक मैन बन गया, दैट वॉज लाइफ लविंग मैन टू लाइक अ मॉन्क. अब मैं एक मॉन्क की तरह, एक साधु भिक्षु जो होते हैं उसकी तरह बन गया था. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन. अब एक मॉन्क जैसे वर्चुअस होता है, बहुत पवित्र होता है, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अपनी आपको न्योछावर करने वाला, अपनी जान भी देने वाला, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है. वैसा ही मैं एक मॉन्क की तरह बन गया था. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. लेकिन अभी भी वो मॉन्क की तरह, वो कहते हैं, मैं जानता था कि ऐसी लाइफ है जो फुल ऑफ लिमिटेशंस हैं, उनको मैं नहीं एन्जॉय कर सकता जैसे. और आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे लोग जो हैं वो भी फ्री नहीं थे. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. एंड फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल होता है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि इसको फ्रीडम मिलेगी उसकी नहीं. स्वतंत्रता सबके लिए होती है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी में कि इसको इतनी फ्रीडम है, इसको इतनी. फ्रीडम इज़ फॉर ऑल. द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. और जो चेन, जो एक फ्रीडम, जो बैन लगा हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सिर्फ मेरे पीपल के लिए नहीं, वो सबके लिए थे. द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और मेरे साथ के जितने भी लोगों के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस थे तो वो मेरे लिए भी थे. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड.
और मुझे पता था ऑप्रेसर जो होता है, जो ज़्यादा बर्डन डालता है, उससे ज़्यादा कौन परेशान होता है? जो ऑप्रेसर होता है वो मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों ही लिबरेटेड होने चाहिए, मतलब जो गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार की गुलाम को करते हैं। सो वो आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीनता है, खुद भी नफ़रत का वो कैदी हो जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, अब दूसरे की फ्रीडम लेगा तो वो खुद भी तो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड बन जाता है। ही इज़ locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So again narrator author says कि ये जो प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस होता है किसी को बिना जाने पहचाने जब हम उसके बारे में एक डिसलाइक क्रिएट कर लेते हैं, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीज़न, मतलब हम किसी को जानते नहीं हैं और उसके बारे में हमने पहले ही मन में एक धारणा बना ली बस कि ये ऐसा ही है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन। सो ही सेज दैट कि बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड पीपल। अब ये जो लोग थे, हमारी जो लोग थे, ही इज़ लॉक बिहाइंड द बार, अ पर्सन इज़ लॉक बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो हम हमारे जाति के जो लोग थे उनसे ऐसे ही बिहेव किया जाता था। सो ही सेज दैट कि जो आदमी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद भी नफ़रत का कैदी होता है और वो दिमाग में एक प्रेजुडिस क्रिएट कर लेता है, नैरो माइंडेडनेस होती है उसके माइंड में, दैट कि वो सलाखों के पीछे है। ठीक है, अब मैं आज़ाद नहीं हूँ और दूसरे की आज़ादी भी छीनता हूँ, तो ठीक उसी तरह मेरी भी आज़ादी छीन ली जाए। सो ही सेज दैट कि गुलाम बनने वाला और गुलाम एक समान रूप से मानवता से क्या हो जाते हैं, रॉब्ड होना मतलब वंचित हो जाना, छीन ली जाती है। देयर ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमैनिटी ना ही गुलाम के अंदर रहती है और ना ही जो गुलाम बनाता है उसके अंदर रहती है। ह्यूमैनिटी एकता में होती है हमेशा, जो लोग सबको एक जैसा समझे, प्यार से रहें। ह्यूमैनिटी हमेशा वहीं जनरेट होती है जहाँ पर इक्वालिटी है। इक्वालिटी के बिना कभी भी ह्यूमैनिटी नहीं हो सकती। ह्यूमैनिटी मीन्स इक्वालिटी। ओके, सो मीन्स दूसरे इंसान को आपसे कितना भी नीचा उसको अपने समान दर्जा देना, अपने समान समझना इज़ ह्यूमैनिटी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। ओके, थैंक यू।